the pump and look at the rate, almost 98. The bike is fairly empty. You will not fill up at Reliance because Kisan Ekta Jindabad. No, let's go to HP. Oh yeah, HP. And the pump is alright. Hit the road. So I have been riding at constant speed of 100 km per hour for much 95 something kilometers, and the average is 937. So the range increases as you ride at 60 or 80. I have been riding at speed of 60 have been riding in the city, second, third gear, fourth gear. Speed must be 40, 50 or 4186, and now we will hit the highway at speed of 70, 80 and see the range increase. Have been cruising at 60. Have been riding till 300 km in the city, and now we will hit the highway. Range, average and range, and let's see. Have been riding at 80 for 1 hour, no problem. This bike is just so smooth, just rolling. 38 km at the highway, average is increasing and the range is 400. Let's see. So morning time, range kilometers 390, and this is average is increasing. This is the range. तो ये बड़ा 6 महीने पहले रोड बनी है और ये सारी बीच में से टूट गई है और इतना ट्रैफिक है कि मैं 40, 60, 70 की स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो थोड़ा एवरेज कम आया है। तो इसमें टोटली हाईवे क्रूजिंग नहीं हुई, सिटी क्रूजिंग बहुत हुई है और ऐसे सिंगल लेन हाईवे भी मिले हैं बीच में। बाकी बाइक बहुत स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रेंज 183, this much kilometer it's showing, this much is the average, and the crappy highway is gone and we will hit the freeway now at around 70 speed. I'm tired of doing 100, 120 hour. I will now cruise at 70, 80, that's it. Let's see.
There is also some jungle ride in this video, so the average could be pretty fucked up in the jungle. The suspension is stiff. Oh yeah. Oh, there's a cow. Hey cow. Uh-oh. The range. I will post the range afterwards. Now jungle highway, average speed 60, 70-ish. The jungle was so quiet, and in the city, pee pee pa pa, fucking hate it. 2 3 gears, man. Range today 571. Road the average is increasing. We rode today at a single lane highway at 40, 60, 70, 80. She will ride 60 kilometer more, so let's see until the reserve hits. It was a rainy day today. See you tomorrow. So reserve light is blinking and 62 still going strong. 509 something kilometer. Oh, it's 589. My bad. And the average is okay. The bike just suddenly stops. I have to call someone to get me some fuel. Let's try to start her up. Okay. So she is starting. I think there is a pump. Total miles 640. Lean her. Let's see if she starts. Oh, we got some fuel. Just 200 meters. Stop her. There was the pump. Fill up right there. It's 640 something.
सो अब आया है टफ पार्ट। अब हम कैलकुलेट करेंगे माइलेज। 2 राइडिंग की हमने। पहली राइडिंग 60% 2 लेन हाईवे पे हुई थी और दूसरी राइडिंग हिल्स पे हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हिल्स की 60% हिल्स पे, 20% सिंगल लेन हाईवे और 20% सिटी में। 5 डेट को मैंने तेल भरवाया था, 14 को एम्प्टी हुआ टैंक 9 डेज़ में, और जो हमारी रीडिंग थी वो 2998 थी और टैंक खाली पे 3474 थी, प्लस 26 की रेंज दिखा रहा था। और पहाड़ों पे रेंज कम दिखाता है क्योंकि हम अपहिल जा रहे थे, तो हम 30 का ऐड कर लेते हैं इसमें। 502 किलोमीटर समथिंग, तो 500 किलोमीटर ले लेते हैं हम। और 15 लीटर मैंने फ्यूल भरवाया था। अब वीडियोस में मैंने पहाड़ों की एवरेज नहीं ली, क्यों? क्योंकि जब आप अपहिल जाते हैं तो रेंज 200 तक गिर जाती है, और जब हम डाउनहिल आते हैं तो रेंज 999 तक पहुंच जाती है। तो पहाड़ों पे एवरेज लेने का सेंस नहीं बनता, क्योंकि अपहिल में बहुत कम और डाउनहिल में बहुत ज़्यादा रेंज शो करती है। तो जो प्रॉपर हमारे किलोमीटर एंडिंग में आए हैं वो 500 किलोमीटर गाड़ी चली है 15 लीटर में, और मैंने तेल भरवाया था 96 रुपीज़ पर लीटर। इतने में टैंक फुल हुआ 15 लीटर मेरा 1440 में। और माइलेज जो बाइक डिस्प्ले शो कर रहा था वो है 37.7। तो माइलेज का फॉर्मूला है किलोमीटर अपॉन लीटर, तो किलोमीटर पर लीटर की एवरेज आ जाएगी। किलोमीटर हमारा 500 कुछ चल गई है, 2 लगा लेते हैं। ये ज़्यादा भी हो सकता है, 30 से ज़्यादा भी हो सकता है ये। और कितना लीटर भरवाया था हमने? 15। तो ये कुछ 33.46 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दी है हमें पहाड़ों पे, नॉट ऑन हाईवेज। तो ये पूरी 16 पहाड़ों की एवरेज निकली है। तो पहाड़ों पे इतनी एवरेज मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी एवरेज है 33 की। और नोट है, काफ़ी रैश ड्राइविंग की गई है। वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं। टॉप स्पीड पे भी हम जो कम्यूटिंग हुई थी हाईवेज़ पे, सिंगल लेन हाईवेज़ पे पूरी टॉप स्पीड पे की गई है 120 पे। और पहाड़ों पे जो 60% कम्यूटिंग हुई है वो 3rd गियर मोस्टली रेड लाइन तक, 30 से 90 की स्पीड तक 3rd गियर में ही गाड़ी रहती है। 3rd या 4th 5th तो डलता ही नहीं है पहाड़ों पे। तो हाई रेव्स में गाड़ी चली है, उसके हिसाब से 33.46 की एवरेज काफ़ी अच्छी है। सेकंड एवरेज में सोल ज़्यादातर 60 और 25%, ये पूरी हाईवेज़ पे हुई है, ये 2 लेन और ये सिंगल लेन। 14% कुछ सिटीज़ में भी राइड हुई है क्योंकि सिटी से एंटर करना पड़ता है, और एक जंगल भी आपने वीडियो में देखा होगा। बाकी ये तेल मैंने भरवाया था 3 अगस्त को, और 18 अगस्त को मेरा टैंक खाली हुआ है। तो ये मेरा 15 दिन टैंक चल रहा है कम्यूटिंग पे। तो एक दिन में मैंने लगभग 50-60 कुछ, कभी कभी मैंने 100 किलोमीटर गाड़ी भी चलाई है एक दिन में, तो बीच में रेस्ट भी था काफ़ी। 4041 किलोमीटर पे मैंने तेल भरवाया था और हमारी गाड़ी चली है 4640 किलोमीटर। तो पूरा 600 किलोमीटर गाड़ी चल गई। और ये इसमें हमें 30 ऐड करना पड़ा, पर इसमें पूरा टैंक ड्राई हो गया था और मेरी बाइक बंद भी हो गई थी बिल्कुल 600 पे आके। तो 600 में पूरा 15 लीटर का जो बाइक थी वो फ्यूल कंज्यूम कर गई। और नॉर्मल फ्यूल हमने हायर ऑक्टेन फ्यूल नहीं भरवाया था एक्स्ट्रा, ये नॉर्मल भरवाया। एक्स्ट्रा में परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और थोड़ी एवरेज भी बढ़ती है नेक्स्ट टाइम के लिए। बाकी कॉस्ट क्या था, अगले महीने ही तेल का कॉस्ट बढ़ गया था 97.7, तो 1.7 रुपीज़ ज़्यादा दिए मैंने, और 1470 रुपये का तेल पड़ा, जो कि 30 ज़्यादा देने पड़े मुझे पिछले महीने से 15 लीटर के लिए ही। तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ है फ्यूल में, प्राइस में। बाकी जो डिस्प्ले में बाइक दिखा रहा था एवरेज, वो 37.8 दिखा रहा था। तो हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे 600/15, तो ये सीधा सीधा आ रही है 40 की एवरेज। तो ये 40 का जो एवरेज आया है ये तो बहुत ही गुड एवरेज आया है मैं कहूँगा, क्योंकि नोट कर सकते हैं 100 किलोमीटर 100 पे मैंने 100, 150, 2 किलोमीटर तक मैंने 100 पे गाड़ी चलाई है, क्योंकि पहले दिन मुझे जल्दी पहुंचना था कहीं पे। और फिर मैंने 80 पे, ज़्यादातर 300 किलोमीटर तक 80 पे गाड़ी चली होगी एट कांस्टेंट स्पीड ऑन हाईवेज। और एक्सेलरेशन होता रहता है, पिकअप लेते रहते हैं, बीच में कोई आ भी जाता है, कोई गाय भैंस आ जाती है तो 80 से स्पीड नीचे भी गिर जाती है।
और 40 तो 70 की ये जो कांस्टेंट 70 की जो कांस्टेंट स्पीड रही है ये सिंगल लेन हाईवेज़ पे रही है, क्योंकि वहाँ ओवरटेकिंग बहुत होती है। तो 40 का जो एवरेज आया इससे मतलब मैं भी हैरान हूँ कि मेरा इतना अच्छा एवरेज आया है। जो स्टैट्स हैं वो आपके सामने हैं, पूरा 600 किलोमीटर गाड़ी चली है और इसमें रैश ड्राइविंग नहीं कह सकता, इसमें हाई स्पीड राइडिंग हुई है 100 तक, पर कांस्टेंट हुई है। हाईवेज़ पे कांस्टेंट स्पीड मैंने मेंटेन की है और सिटीज़ में भी चाहे मैं सेकंड गियर में हूँ थर्ड गियर में हूँ तो मैंने कॉन्स्टेंटली लो रेव्स पे गाड़ी चलाई है, हाई रेव्स पे ज़्यादा नहीं चलाई। तो ये बाइक भी अपनी की कंपनी में एक बंदा आया था जिसने 60 पे कांस्टेंट गाड़ी चलाई है और वो 45 का एवरेज क्लेम करके गया है। तो आई थिंक इट्स पॉसिबल टू गेट 45 फ्रॉम अ 350 लॉन्ग स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन। इस डाटा को देख के हम कह सकते हैं कि हाँ 45 का एवरेज जो है वो गाड़ी दे सकती है। बाकी 40 का, मैं यंग राइडर हूँ तो मैं थोड़ा हार्ड एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन डाउन शिफ्ट्स भी करता हूँ, तो 40 का एवरेज काफ़ी अच्छा। कितना लीटर गाड़ी ने पर 100 किलोमीटर खर्च किया तो वो भी निकाल लेते हैं। 15 लीटर बाई 600 इंटू 100 हो जाएगा, तो ये कुछ आ रहा है अपना, ये कट गया, मैथ्स पढ़ लेनी चाहिए थी, ये यहाँ से कट जाएगा, टू जा और टू जा कितना होता है 6 टू जा 12, तो 3 बच गया तो पॉइंट लग जाएगा और फिर पॉइंट 30 तो 5 जा 2.5। तो ये आ गया 2.5 लीटर पर 100 किलोमीटर हमारी गाड़ी ने एवरेज दी। भी काफ़ी अच्छा है 350 सीसी के लिए। बट आप जो नोटिस करने वाली बात वो है कि हम कांस्टेंट स्पीड 80 और 100 और 70 पे चल रहे हैं, तो 80-100 की स्पीड बहुत ज़्यादा है। मैं कार्स के साथ राइड करता हूँ, बाइक्स के साथ राइड नहीं करता। और इट्स अ क्रूज़र, तो क्रूज़र में फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। बुलेट से कंपेयर करेंगे तो कुछ लोग कमेंट में कहेंगे बुलेट भी 40-45 का एवरेज दे देती है, पर वो देती है एट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। अगर आप कांस्टेंट चलाएंगे तब बुलेट 40 या 45 का एवरेज देती है, और 60 पे तो स्प्लेंडर भी चलती है। तो देखा जाए तो 40-45 का अगर आप एवरेज निकाल रहे हैं वो भी 60 पे, तो कुछ नहीं है। और 80 की स्पीड तो डबल स्पीड हो गई, आप जहाँ 1 घंटे में पहुँचेंगे वहाँ आधे घंटे में पहुँचेंगे। तो देखा जाए तो 100 पे भी मैंने राइडिंग की है, तो 100 की बुलेट 100 पे तो स्टेबल ही नहीं है पहली बात। बाकी राइडिंग करते हैं 100 पे, तो 100 पे 40 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज बहुत ही अच्छा है। तो मेरे हिसाब से फ्यूल इकोनॉमी में भी ये बाइक बुलेट को बहुत ख़तरनाक तरीके से बीट करती है। लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, उसी से मैं नई वीडियो बना पाऊँगा। या मत करें, बाहर में जाए। अब 40 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज इस बाइक ने कैसे दे दी, उसके 3 रीज़न हैं, तीनों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहला, हम ये देखते हैं कि 80 की स्पीड पे इको लाइट ऑन होती है। कैसे? क्योंकि जब बाइक इको लाइट तब ऑन होती है होंडा की जब 4000 आरपीएम से आरपीएम नीचे होते हैं। तो जब 4000 आरपीएम से आरपीएम नीचे होते हैं तो इको लाइट ऑन होती है, और 80 की स्पीड पे इको लाइट ऑन है। इसका मतलब 80 की स्पीड पे अगर हम क्रूज़ कर रहे होते हैं तो 4000 आरपीएम से नीचे आरपीएम्स रहते हैं। इफ़ यू वांट एवरेज तो आप 4000 आरपीएम से नीचे अपना आरपीएम रखें, तो इससे आपका अच्छा एवरेज देगा। और बाइक की गियरिंग पे डिपेंड होता है। अब गियरिंग इशू पे आ जाते हैं। रीज़न सेकंड है लॉन्ग गियरिंग। जो 5th गियर है वो इतना 60 से अबव डलता है वो गियर, तो इतना लॉन्ग है कि उस लॉन्ग गियर, ओवर ड्राइव गियर कह सकते हैं। ये जो वैसे बाइक को 4 गियर की लोड है, 5वें गियर की ज़रूरत नहीं है, 5वां ओवर ड्राइव है। ओवर ड्राइव सिर्फ हाईवेज़ क्रूजिंग के लिए यूज़ होता है। इंजन में इनफ पावर होनी चाहिए, तो उससे आप अच्छा माइलेज अचीव कर सकते हैं। तो जो लॉन्ग गियरिंग है उससे हम 80 की स्पीड में 4000 आरपीएम से नीचे रहते हैं। अब बाइक 4000 आरपीएम की जो आरपीएम है वो मेंटेन कैसे करती है, वो आता है फिर थर्ड रीज़न, मैक्स टॉर्क। अब होंडा 30 न्यूटन ऑफ टॉर्क 3000 आरपीएम पे मैक्स टॉर्क जनरेट कर देती है। तो इस टॉर्क की मदद से हम 4000 आरपीएम पे पूरा हमें टॉर्क मिल रहा होता है और हम 80 की स्पीड मेंटेन कर पाते हैं, वो भी लॉन्ग गियरिंग की वजह से, जो कि हमारा 5th गियर है उस वजह से। इस पूरे कंप्लीट पैकेज से मतलब इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन है गियरिंग, इंजन पावर और स्पीड का कि हम 40 किलोमीटर
पर लीटर की माइलेज अचीव कर पाते हैं इवन एट स्पीड्स ऑफ 80 विच इज़ कंसीडर्ड हाई स्पीड क्रूजिंग। टायर साइज़ हो गया, चेन स्प्रॉकेट हो गया, गियरिंग हो गई, इंजन की कनेक्टिंग रॉड हो गई, इंजन का स्ट्रोक हो गया और 350 सीसी हो गई, सब कुछ इतना परफेक्ट है कि हमें इस कॉम्बिनेशन से इतना स्मूथ पावर और इतनी हाई स्पीड क्रूजिंग हमें मिल रही है। और ये चीज़ बुलेट कभी भी अचीव नहीं कर पाएगी। दैट्स नो, मतलब कभी नहीं। होंडा इंजीनियर्स, इट्स अ जापानीज़ बाइक, ओनली जापानीज़ कैन डू इट। और ये चाह के भी दे कैन कॉपी दैम लाइक द 650 इज़ कॉपी ऑफ स्ट्रीट ट्विंस, बट इट्स इन द एंड इट्स अ कॉपी, नॉट दैट ओरिजिनल चीज़। ओरिजिनल है, जो जापानीज़ है, बुलेट कॉपी नहीं कर सकती। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। होंडा में मैंने 5000 गाड़ी चलाई और 600 किलोमीटर मुझे एक टैंक पे एवरेज अगर बाइक ने दी, मतलब 40 का एवरेज अगर बाइक ने पूरे 5000 पे दिया, तो 8.3 टैंक्स मैंने टोटल भरवाए होंडा CB350। एक टैंक 15 लीटर का है, तो 125 लीटर मैंने 8.3 टैंक्स 125 लीटर तेल भरवाया। और अभी एक लीटर का प्राइस लगा लेते हैं हम 96 रुपीज़, तो 12,000 रुपीज़ का फ्यूल करेक्शन मैं अभी तक होंडा में भरवा चुका हूँ। बट मेरे स्टैट्स के अकॉर्डिंग मैं कम से कम ज़्यादा 12 से ज़्यादा 13 या 14,000 का फ्यूल भरवा चुका हूँगा, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग के टाइम पे गाड़ी ने थोड़ा काफ़ी कम एवरेज दिया था। मेरे हिसाब से 400 या 500 के बीच में एक टैंक का एवरेज आया होगा 1000 किलोमीटर तक, तो 2 टैंक 400 किलोमीटर पे चले थे इंजन ब्रेकिंग और उसके बाद भी। तो हम अब ले लेते हैं कि CB350 ने 500 का एवरेज दिया, जो कि पहाड़ों पे दिया था। 500 किलोमीटर एक टैंक पे अगर हमारी CB350 देती है, तो उससे 33 का एवरेज अगर जोड़ लेते हैं, तब भी हमारा 14,400 का तेल बैठेगा। तब भी ये 2000 समथिंग लेस है 250 से, और इन फ्यूचर इट एड्स अप। ये करेक्ट कर सकते हैं कभी भी, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू गाइस। सो कोई मिस्टेक होगी हो, फॉरगिव मी। बाकी जितना हो सकता था मैंने अपनी तरफ से एवरेज को बिल्कुल प्रॉपर जेन्युइन रखने की कोशिश की है, इसमें कोई हेराफेरी नहीं हुई। सो थैंक यू, कीप राइडिंग हार्ड, राइड सेफ।